Good evening and welcome to Ek Samvad at Arunim Ankuran. Today we are starting a new series which is inspired by Khelega India to Khilega India. Arunim Ankuran supports sports persons. Yat bhavo tat bhavati. You become what you believe. Our guests today are the golden boxing star of Nagpur, Miss Alfia Pathan, and her first coach, Shri Ganesh Purohit. Arunim Ankuran is extremely grateful to both of them for joining us in this first episode of the new series. Word about Arunim Ankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunim Ankuran, we believe that each person is special and unique in some way. Each person can make a difference, each person can make an impact, and that is the inspiration which drives Arunim Ankuran every day. Boxing coach Shri Ganesh Purohit is the first NIS certified boxing coach of Maharashtra. He has been training boxers for several years and some of his students are doing extremely well. As you can see, Alfia is one of those lucky few who have been coached by him. Nagpur Boxing Training Center at Chitnavis Park, Yashwant Stadium, Hislop College, Mankapur Stadium, Gandhi Bagh, Ishwar Deshmukh College and CPN Barar College are some of the places where Ganesh sir is coaching future boxers, future champions. Achievements of Southpaw Alfia Pathan are many. She has been at the 62nd National School Games. She has been at the 63rd National School Games, first Khelo India School Games, 64th National School Games, 3rd Junior Women National Boxing Championship, 65th National School Games, and she's been doing extremely well. In her international participation, a 2nd Junior Nations Cup, Serbia, 3rd Junior Nations Cup, Serbia, Asian Junior Girls Championship, World Youth Boxing Championship 2021, and that's where she brought a gold for India. IBA's Instagram account shared a video of her and wrote, "She's got skills, fans' decision." Most of our followers chose Alfia Pathan as the best boxer among women at the IBA Youth World Boxing Championship. What an achievement. First of all, congratulations to both of you. आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो. इतना matter of pride for everybody. And thank you for joining us here today. तो हम लोग गणेश सर से शुरू करते हैं. सर, आपने अल्फिया को शुरुआत से बॉक्सर की ट्रेनिंग दी, तो कैसे जर्नी शुरू हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए. मैडम, मैं रेगुलर कोचिंग आपको भी पहले बता चुका हूँ कि 87 से मैं जब पास आउट हुआ है NIS, उसके बाद मैं कोचिंग प्रोफेशन से जुड़ा रहा हूँ अभी तक. हमारा सेंटर अलग अलग जगह पे चलते थे, स्पेशली हम दंतोली में, के बाद ईश्वर देशमुख कॉलेज, इस्लाम कॉलेज वगैरह. बाद में अभी कुछ 2011 से अपने यहाँ शुरू किया था, मानकापुर स्टेडियम. जी हाँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है डिवीजन, तो वहाँ सुविधा थी, बॉक्सिंग रिंग वगैरह भी थी वहाँ पे. और वहाँ जब शुरू किया उसके बाद 2000 बहुत से बच्चे आते जाते रहते थे. सेंटर में तो होता ही है, बहुत से लड़के आते हैं, वो एम्बिशियस के साथ आते हैं, बहुत ठीक के रहते हैं, आगे बढ़ते भी है. और फिर कुछ नए आते हैं, कुछ चले जाते हैं. इस प्रकार से 2013 से उसका अल्फिया का भाई है शाकिब पठान, वो मेरे पास ट्रेनिंग करता था. और अल्फिया भी वहाँ कुछ दिन बाद के साथ में आती थी, और वो बैडमिंटन फिटनेस करके खेलती थी, बैडमिंटन वही हॉल में, मनकापुर हॉल में, स्टेडियम में. बाद में वो वहाँ आके बैठती थी भाई के इंतजार में, साथ में दोनों साथ में जाते थे, साथ में आते थे. भाई का प्रैक्टिस होने के बाद फिर एक दिन बैठी थी मेरे पास, तो बैठी रहती है, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू करो. तो ऐसी पूछ लिया उसने, बोला इसमें बॉक्सिंग में क्या करना है, मारामारी तो करना है. वो तो सब कर दे, मारामारी के क्या करना. तो मैंने बोला हो जा तैयार, फिर प्रैक्टिस करो. मेरे फादर को बताओ, यदि वो तैयार हो, मैं तो तैयार हूँ खेलने को.
फिर वैसे ही दूसरे दिन दादाजी से बात किया तो उन्होंने बोला भैया सोशल कस्टम के बारे में बताया, वो हज की हुई लड़की है और कुछ कंडीशन भी है। अभी हमको जरा गर्ल्स के बारे में इतना आगे खेलते स्पोर्ट्स वगैरह पे ज्यादा है, लड़की आती नहीं, जल्दी खेलते नहीं हो। वो फिटनेस के तो फिटनेस तो कर ही रही है, तो बॉक्सिंग उसका सेल्फ डिफेंस के हिसाब से भी अच्छा रहेगा। उसको खाली प्रैक्टिस करते तो सीखने में क्या तकलीफ है, नहीं खेलेगी वो। कि जो जनरल लड़कों के जिससे बात करते ऐसी बात करके उसको शुरू, वो तैयार हुआ, फादर उसके तैयार हुए और फिर वो प्रैक्टिस करने आने लगी। तो बहुत सारे बच्चे थे साथ में जो फंडामेंटल सबको सिखाते हैं वैसे इनको भी सिखाते रहे। इसका जो ईगरनेस दिखा मेरे को सीखने का, तो जैसे बता दिए कि जब तेरे को 15 मिनट करना है या 5 मिनट करना, उसके बाद तो जो आफ्टर 5 मिनट शी कम बैक टू मी, सब मेरा हो गया 5 मिनट, तो और क्या करना है। तो ऐसा करके बाद कुछ दिन ऐसे निकलते गए। फिर वो जब उसका ईगरनेस दिखा, उसका जो इमिटेशन करने की होती है, कोई भी जो टेक्निक बताते थे इमिटेशन वो तुरंत कर लेती थी। रिपीट करके बताओ तो वो सेम अच्छा ऐसा करना है क्या, ठीक है। तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं ये लड़की जो है उसमें इसका एज भी है, हाइट भी है, पर्सनालिटी भी है और ये कुछ मतलब इसका जो इंटरेस्ट है, मेंटल सेटलमेंट है, इसका स्टैंडर्ड ऑफ द लर्निंग का जो क्यूरियोसिटी है, इसका बेनिफिट बॉक्सिंग में मिल सकता है। फिर मैं थोड़ा सीनियर इसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया। बहुत सारे बच्चे थे, साथ में लड़कियां भी थी, लड़कियां उसकी वेट कैटेगरी में नहीं थी, उसके सीनियर भी थी। तो फिर मैं उसका बाद में तो टचिंग तो उसको क्या, फिर मैंने अंदर से निश्चित किया कि इसको बॉक्सिंग को प्रैक्टिकली इसको स्पोर्ट्स में डालेंगे यानी कंपटीशन में डालेंगे। जब मैंने बोला क्या तैयार करना कैसे, तो फिर उसको मैं लड़कों से उसको स्पारिंग कराना लगा मैं कुछ कंट्रोल। फिर बाद में उससे वो सेटल कंडीशन लड़कों के लिए डालते थे, आपसे ज्यादा पावर यूज नहीं करना है, या ये लेफ्ट मारना है, राइट मारना है, जो भी जो टेक्निक रहती है इस प्रकार से कर करके वो फिर वो फुल्ली खोलने को तैयार होती है। सर मैं खेलती पूरा इसके साथ खेलूंगी मैं, ऐसा इसको कॉम्पिटिटिवली तैयार किया। बात है उसने जब शुरू उसके 2 महीने बाद, लगभग 2 महीने के बाद एक परवड़ी में स्टेट चैंपियनशिप थी बॉक्सिंग की। फादर को मैंने तैयार किया, अब उसको भेजो खेलने, क्या सारा शादी खेलने के लिए नहीं भेज सकते, अकेली लड़की भेजते बाहर नहीं, ऐसा नहीं। फिर उनको मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उनको बोले आप हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आपको लेटर लगता है एसोसिएशन की तरफ से, तो आपको छुट्टी के लिए देते हैं, आप खुद मैनेजर बनकर चले जाओ, हमको मैनेजर की जरूरत भी है, ऐसा करते। फिर उनको तैयार किया, वो तैयार हो गए जिम पे। फिर वहाँ उन्होंने बोला भी आपको मालूम भी पड़ेगा बॉक्सिंग में क्या क्या तकलीफ होती है, क्या क्या है, क्या होता है, कैसा होता है, तो आपको सबको भी नॉलेज आ जाएगा। फिर गए वहाँ, तो वहाँ गोल्ड मेडल चैंपियन हुई वहाँ पे, और फिर उनको भी ठीक लगा और लड़की को इंटरेस्ट बढ़ गया। और जो पेपर न्यूज वगैरह आया, क्योंकि फैमिली को भी लगा कि चलो भाई उसको भी ठीक हो रहा है। बाद में 1-2 महीने बाद फिर स्कूल गेम्स थे, स्कूल SGI पर है, उसके फिर DSO कॉम्पिटिशन, DSO में तो उसके तो कोई था नहीं वेट में, डिवीजन लेवल पे वो जीती, स्टेट में जीती। बात है नेशनल, ग्वालियर नेशनल था 2016-17 की बात है। वहाँ पे शी वन द सिल्वर मेडल, लास्ट फाइनल में हारी, वो इंटरनेशनल लड़की पंजाब की, उससे हारी, बहुत अच्छा खेल के हारी। उसके बाद उसका ये जो शुरू हुआ उसका बॉक्सिंग का परफॉर्मेंस लेवल, वहाँ से उसकी शुरुआत के बाद उसका इंटरेस्ट भी बढ़ा, फैमिली का भी बढ़ा, और हमको एज ए कोच हमको भी लगा कि चलो ये जब इसका परफॉर्मेंस इतना जल्दी वो एब्जॉर्ब कर रही है और परफॉर्मेंस दे रही है, सिंसियरली दे रही है, और उसका जो एक हमारा कोचिंग, मेरे अनुभव के हिसाब से बता दो, जो कोचिंग के हिसाब से जो बच्चों का कोई भी गेम हो तो उसमें पेरेंट्स, कोच और स्टूडेंट तीनों का टेंगल तीनों तैयार हो जाते हैं। वो कोच कितना भी अपना इंटेलिजेंस दिखाया, कितना भी रेगुलर रहे, जो भी करे, आइडेंटिफाई भी करे बॉक्सर को, लेकिन दिन बच्चा रेगुलर दिया आता है या कुछ कारण से गैप मारता है या रहता नहीं, तो भी प्रॉब्लम आता है। बच्चा रेगुलर आता है, कोच भी है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड का प्रॉब्लम मैडम बाद में आता है, जब परफॉर्म देने लगते हैं बच्चे, क्योंकि बहुत से खर्चे भी आते हैं, और फिर एजुकेशन का जो लेवल है आजकल,
ट्यूशन हेड जो है उसके कारण से भी बच्चों का ट्यूशन भी रहता है, इधर जाना उधर जाना है, बहुत सी दूसरी बातें रहती है। ये फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली का जो यदि सपोर्ट रहा, हिंदी हमको इनको इसको सिखाना है, पढ़ा खिलाना, उसको खिलाना है, बॉक्सिंग आगे तक हाई लेवल तक जीत तक जाती है, तो ये यदि ट्रायंगल जम जाता है तो फिर वो आगे परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। और अक्षया का सबसे प्लस पॉइंट ये इसका फैमिली बैकग्राउंड ही रहा कि उनकी पहली इच्छा थी कि ये लड़कियां नहीं करेगी, लेकिन जैसे उसने सिंसियरली करना छूट गया तो जितना अल्फिया इंटरेस्ट से करती थी उससे उतना उससे भी डबल इंटरेस्ट से उसके फादर ने उसको सपोर्ट किया। और इट इज अब जो रिजल्ट दिख रहा है उसका सबसे बड़ा एक लाभ उसको वही है, वो ही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अल्फिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। एंड आई थिंक एज एज एन इंडियन आई एम सो प्राउड दैट तुमने इंटरनेशनल लेवल पे जाके इंडिया के लिए गोल्ड लेके आई, और बेस्ट बॉक्सर तुमको लोगों ने, फैंस ने वोट किया। तो कैसा फील हो रहा है तुमको, कैसा लग रहा है? इज दिस लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, ऐसा लग रहा है? जी मैम, जैसे कि मतलब एक बहुत ही प्राउड मोमेंट हो जाता है जब आपके 7 गोल्ड मेडल्स जो इंडिया ने वर्ल्ड में वर्ल्ड चैंपियनशिप में लेके आया, उसमें से एक आपका भी रहता है, और फिर उसमें से फैंस की वजह से फिर आप एक बेस्ट बॉक्सर का भी आप टाइटल ले लेते हो। और जैसे कि अभी मेरा जूनियर में भी डेब्यूट हुआ था, मैं अभी यूथ जूनियर से यूथ में आई थी, तो ये मेरी फर्स्ट मतलब यूथ में आने के बाद में फर्स्ट मेजर चैंपियनशिप थी। तो ये बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है जब एक आप एंटर करते ही आपका एक गोल्ड मेडल आ जाता है और आप एकदम ही मतलब एकदम प्राउड हो जाते हैं। तो राइट। लेकिन ये जो गोल्ड मेडल है इसके पीछे बहुत सारी मेहनत और तैयारी है, बहुत सारे सालों की मेहनत है एक्चुअली। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ अल्फिया कि हम लोग ना किसी भी चीज से अगर हमको चोट लगती है या दर्द होता है तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम उस चीज को अवॉइड करते हैं। तो बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट इज समथिंग जिसमें चोट लगता है, दर्द होता है, फिर भी अगर कोई कर रहा है तो तुमको क्या चीज मोटिवेट करती है? एंड गणेश सर ने तुम्हारा टैलेंट आइडेंटिफाई किया, पर वो बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि उसका कमिटमेंट बहुत है, वो बहुत। तो कैसे तुमको बॉक्सिंग में डेवलप इंटरेस्ट हुआ? मैम, जैसे कि सर ने बताया कि मैं पहले बैडमिंटन एज अ फिटनेस खेलती थी, मतलब बचपन से मैं स्कूल लेवल वगैरह में स्पोर्ट्स में ही थी दिन, मतलब मेरी आधी जर्नी स्कूल की। तो जैसे मैंने बैडमिंटन स्टार्ट किया तो फिर मेरा भाई बॉक्सिंग खेलता था, तो उसको देखते देखते मुझे भी इंटरेस्ट आ गया था। और 2-3 मतलब मैंने उसकी डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन की चैंपियनशिप देखी थी मानकापुर स्टेडियम में। वहां पर सारी लड़कियों की भी बाउट से चालू थी, तो मैंने देखा था। तो फिर मैंने जिद करी थी पापा से मेरे कि मुझे भी खेलने दो, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया था फर्स्ट टाइम पे कि नहीं, तेरा हज हो गया, अभी कहाँ, अभी तू बैडमिंटन ही खेल कर गया, अभी मत खेल करके। तो फिर मैंने बहुत 3-4 दिन बहुत मतलब जिद करी कि नहीं मुझे खेलने दो। फिर लास्ट में जाके वो माने कि ठीक है, मैं खिलाऊंगा तुझे, लेकिन मैं साथ में रहूंगा तेरे। तो मतलब ठीक है। तो इस तरह मेरा मतलब जो बॉक्सिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी। और फिर जो आप बॉक्सिंग खेल रहे तो सर तो मुझे स्टार्टिंग में लड़कों के साथ ही स्पायरिंग करा दिया करते थे हमेशा, मतलब 3-4 दिन मुझे ज्वाइन करके। और स्पायरिंग जो हमारी हर फ्राइडे हुआ करती थी, तो सर मुझे लड़कों के साथ कराते थे। तो उसमें ऐसा होता था कि पंच तो हार्ड, लड़कों की पावर अलग ही पड़ती है, आप लड़कियों की कंपेयर में देखेंगे तो लड़कों की पावर ज्यादा तो रहती है। बिल्कुल। तो उसमें लग जाता था। तो फिर ऐसा रहता था मतलब माइंड में कि इसने मुझे मारा तो अगली बार मैं मारूंगी। तो इस करते करते मुझे मतलब ऐसा डेवलप होते गया कि आज मेरे को मारी है भैया ने, फिर कल मैं मारूंगी करके। तो इस तरह फिर मतलब इंटरेस्ट भी बढ़ता गया। फिर गेम में भी मतलब जो मेरा फर्स्ट नेशनल था जो ग्वालियर मुझे सिल्वर था, उसके बाद मेरा और डेवलपमेंट होते गया, गेम में परफॉर्मेंस बढ़ती गई, मतलब एक क्लैरिटी जो गेम में होती है वो आने लगी। तो ऐसे मेरा स्टार्ट हुआ था। पर वो दर्द ने तुमको कभी बॉदर नहीं किया कि दर्द होगा, चोट लग जाएगी, ऐसे कभी नहीं सोचा? नहीं, कभी नहीं सोचा। ओके, दैट्स मतलब व्हाट लगा मेक्स। क्योंकि अब जैसे आप नेशनल या स्टेट चैंपियनशिप में जाते हो तो लड़कियां तो आपको आपके वेट की मिलती है और सेम पावर की रहती है, तो उतना लगता नहीं है। अगर लग भी जाता है तो कोई मतलब रहता ही है कि नहीं हमको जीतना है करके, तो फिर जीतने के बाद में सारे पेन चले जाते कि हाँ ठीक है भैया जाना। हाँ। अच्छा, तो ये बताओ कि जैसे गणेश सर तुम्हारे कोच हैं, तो उनकी कोचिंग में से तुमको कौन सी चीज ऐसी लगती है कि बहुत
सपोर्ट किया, उस चीज ने तुमको बहुत हेल्प किया एक चैंपियन बनने में? मैम जैसे कि मतलब जो सर का नेचर है, तो सर का नेचर ऐसा है कि आपको कभी नहीं चिल्लाएंगे, आप शायद गलत कर रहे हो, आप मतलब शैतानी कर लो कुछ भी, सर आपको कभी नहीं चिल्लाएंगे, बहुत ही आराम से आपको बताएंगे नहीं बेटा ऐसा नहीं ऐसा। तो ये बात मतलब सर की बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि बाकी कोच रहते हैं कि ये डांट देते आपको, फटकार देते कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो सर कभी नहीं बोलेंगे नहीं बेटा ठीक है चलो ये करो ये करो। तो प्यार प्यार से सर ने मुझे बहुत सिखाया है, तो इस वजह से मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो हो गया था मेरे को। तो सर व्हाट आर सम ऑफ द फर्स्ट स्किल्स, जैसे कोई बॉक्सिंग सीखना शुरू किया, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फिया ने या किसी भी बच्चे ने, तो सबसे पहली क्या चीजें हैं जिस पे आप फोकस करते हैं एज अ कोच? अच्छा क्वेश्चन किया मैडम। ये देखो बॉक्सिंग एग्जैक्टली कैसा है कि जो मोटर एबिलिटीज है, जैसे स्पीड हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, इंड्योरेंस हो गया, एजिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन है, ये जो फिजिकल कंपोनेंट्स है, ये हर हर व्यक्ति में, लड़का हो लड़की हो, एक कुछ न कुछ मात्रा में रहती है। लेकिन यदि अपन किसी को पकड़ के तो लाते नहीं है कि चलो तो आ जा बॉक्सिंग में। कभी कभी करते भी हम, अच्छा स्टाउट लड़का लड़की दिखी तो जैसे मैं ओलंपिया को किया था, ऐसे बहुत से बच्चे भी दिखते हैं, ये तो यार तू ये गेम की बॉक्सिंग में आ जा, तू कुछ करे ऐसा। कभी कभी टैलेंट आउट तो जब तो लगता है कभी, तो उस टाइम पे बच्चों को बोलते हैं। लेकिन जब बच्चे हमारे पास इनिशियली खुद होके आते हैं स्पॉन्टेनियसली खेलने गया, तो फिर एक उनका एक फिजिकल जो रहता है, एज है उसका उनका उनका जो एज, उसके बाद में उनका हाइट, और एक फिजिकल लैंग्वेज एक लगती है कि चलो भी बॉक्सिंग के लिए लड़का बात कर रही है, बात कर रहा है, वो करना है, तो उसके अप्रोच की समझ करते हैं ये कुछ लग रहा है इस पे है। फिर बाद में क्या जो फंडामेंटल लोग का लगभग सबको नहीं, तो किसी को बोलती नहीं बॉक्सिंग बहुत किया था नहीं बोलते, पर जब बाद में समझ जाता है तेरा लेवल ये है, तो मैं करता हूँ, तू इस लेवल के ऊपर जाना तेरा मुश्किल है, तू इतना भी करेगा तो इस लेवल तक जा सकता है। उसके बाद तेरा या फिजिकल कंडीशन, तेरा बॉडी वेट, या तेरा जो भी एज कैटेगरी है, या तेरा जो स्टाइल है, वो तुमको आगे बढ़ने में तो तकलीफ आएगी। तो इतना ऐसा थोड़े दिन बाद बता दे रहे थे। लेकिन जब ये लड़कों का जो परफॉर्मेंस दिखता है कि इसपे क्वालिटी ये है, ये स्ट्रेंथ वाला, ताकत वाला है, ये एक मैनेजर वाला है, ये मतलब हाइट अच्छी है, इसका हाइट कम है, इसका स्ट्रेंथ पावर है, लेग पावर ज्यादा है, स्पीड अच्छी है, ये जो फिर उसको जो फंडामेंटल ट्रेनिंग सेम रहती है। उसके बाद में जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट देखते हैं, बाद में वो स्पेशल क्वालिटी के हिसाब से, स्पीड वाला है तो उसको स्पीड के ऊपर ख्याल देते हैं, स्ट्रेंथ वाला तो स्ट्रेंथ के ऊपर ख्याल देते हैं, और उसका जो स्टाइल ऑफ द प्लेइंग है, कोई अपन बॉक्सिंग आप देखते ही होंगे, बहुत एग्रेसिव खेलते हैं, जैसे माइक टाइसन टाइप था, और कोई अपने मैन्युअली खेलते हैं, कीप द बॉक्सर अवे फ्रॉम द डिस्टेंस से खेलते हैं, डिस्टेंस से खेलते, कोई एकदम क्लोज जाके खेलते हैं। ये फिजिकल टेक्निक इज द सेम, लगभग बॉक्सिंग में मारना है ही, उसको मारना पंची है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो एबिलिटी है, वो एबिलिटी को फिर हम देखते हैं, उसको भी उसको निखारते हैं कि चलो इधर वो इस स्टाइल से लेफ्ट 1-2 जैसे लेफ्ट साइड मारना है, जो भी पंचेस मारना है, वो सबको मारना वही है, लेकिन उसकी मारने की जो स्टाइल है, मारने का जो डायरेक्शन है, मारने का जो टाइमिंग है, वो उनकी हाइट और उनका साइकोलॉजिकल बिल्डअप के हिसाब से हम उसको डेवलप करते हैं। फिर गिव हिम बेस्ट फॉर द आगे के लिए, इसको बहुत काम में आता है। नहीं तो क्या होता है कि एक 100 मीटर रनर है, एक 1500 मीटर वाला है, तो दोनों को ट्रेनिंग देंगे स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन बाद में जो कैपेसिटी है, 100 मीटर वाले का मसल बिल्डअप अलग रहेगा, 1500 वाले का अलग रहेगा, 800 वाले का अलग रहेगा। तो 800 वाले को 100 दौड़ते रहेंगे, 100 वालों को 1500 में डाल देंगे। तो वो एक कोच का क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कोच का, कि इसको कौन सी तरीके से मैंने वो है, तो बॉक्सिंग में ही वो, लेकिन इसको कौन सा उसमें जो कैपेसिटी है उसके उसको कौन सी स्टाइल से बॉक्सिंग मेरे को उसको डेवलपमेंट करना चाहिए, ये चीज मैं देखता हूँ। और ये मोस्टली हालांकि सभी कुछ करते हैं, और ये जो इस प्रकार से बाइफिकेशन करते हैं ट्रेनिंग में, दे विल गिव द बेस्ट रिजल्ट। सो अल्फिया, जैसे तुमने ट्रेनिंग शुरू की जब, तो एकदम से तो बॉक्सिंग नहीं किया होगा, पहले तो उसकी तैयारी की होगी, फिर तो जब तैयारी कर रही थी तो क्या क्या चीज करनी पड़ती थी शुरू शुरू में?
मैम जब मैंने जैसे स्टार्ट किया था तो पहले मैं पूरे ही बॉक्सिंग में नहीं चली गई थी। तो मेरा ऐसा होता था कि 1 घंटा बैडमिंटन खेलती थी, फिर जो बाकी का टाइम बच रहा था, जो जब मतलब भाई मेरा बॉक्सिंग करने आता था, फिर उसकी टाइमिंग के साथ में फिर बॉक्सिंग खेलने चले जाती थी। तो ऐसा रहता था। तो मैं दोनों साथ, मैंने 3-4 मतलब 6-7 मैंने किया हूँ ऐसे कि पहले बैडमिंटन खेल लो, फिर बॉक्सिंग में फिर सर सिखाते थे मुझे बेसिक। तो स्टार्टिंग में तो मतलब 1-1.5 हफ्ता जो हमारा रहता है सिर्फ बेसिक ही रहता है। आप बस फुट मूवमेंट हो गए, आपके पंच कैसे मारते हैं, आपकी मुट्ठी कैसे बनती है, ये सब पे चलता है। और इस कैसे तरह बनती से है मुट्ठी? ऐसे दिखाओ एक बार कैसे, बिकॉज हम लोग को दिखता तो है नहीं, वो तो ग्लव्स पहनते हो, दिखाओ। सो दिस इज दैट मतलब गोल्ड मेडल पंच, वाओ। ओके। हाँ, फिर? फिर ऐसे ही फिर मैम धीरे धीरे आपको मतलब धीरे धीरे टेक्निकल आपको सिखाया जाता है कि आप वन का इस्तेमाल कैसे, राइट का कैसे इस्तेमाल करें, लेफ्ट का कैसे इस्तेमाल करें। फिर ऐसे ही आपका रहता है, आपका ये बेसिक आपका ठीक होने लगता है तो आपको थोड़ी एडवांस में डालते हैं, हुक अपर कट कैसे यूज करते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल जो होता है फुटवर्क में जो थोड़ा एडवांस में होता है तो फिर वो सिखाते हैं। तो इस तरह फिर बॉक्सर को फिर एक तरह से एक लेवल में मतलब लेके जाते हैं, फिर उसमें फिर और इम्प्रूवमेंट, उसको ही जो बेसिक होता है उसको ही और इम्प्रूव करते करते फिर आगे खेलते तो तुमको कभी भी ऐसा लगता था कि अभी बस हो गया, अभी मुझे और नहीं करना है? कभी ऐसा लगता था जब ट्रेनिंग करती हो? हैं। मैम स्टार्टिंग में लगता था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बेसिक होता है बहुत बोर मारता है, क्योंकि एक आपका 1-1.5 घंटे से हाँ, होती है। हाँ। फिर ऐसा रहता है कि, और उस टाइम पे मैं स्टार्टिंग में आई थी तो उस टाइम पे शायद मैं ही न्यू थी, बाकी सारे भैया वगैरह ही रहते थे, ज्यादातर हम्म, लड़कियां उतनी रहती नहीं थी। तो हम्म, अगर रहती भी थी तो 3-4 दिन आए, बाकी छुट्टी हफ्ता भर ऐसे चलता था। तो जो बेसिक रहता फिर अकेले ही अकेले करना पड़ता था। फिर 1-1.5 हफ्ता इतना बोर मारा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सीखती गई तो उसमें और इंटरेस्ट बढ़ता गया, फिर उसके बाद बोर मारते ही नहीं अब। अब तुमको कभी ऐसा नहीं लगता कि छुट्टी कर लूं? नहीं मैम, फिर छुट्टी करो ऐसे नहीं होता, नहीं फिर ऐसा एक टारगेट हो जाता है आपके सामने। जैसे कि मैं अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रही थी, तो ऐसा रहता था कि चलो थोड़ा और कर लेते हैं, कि वर्ल्ड आ रहा है, गोल्ड लेके आना है करके थोड़ी। फिर क्योंकि कभी कभार मैम बाउटें जो होती है 3-2 से चले जाती है, आपको मतलब 19-20 का स्कोर से आपकी बाउट चले जाती है। और फिर बहुत दुख होता है कि भैया इतनी मेहनत करी, फिर चले गया। फिर इतनी सी मेहनत आप मिस करके क्या है, इससे अच्छा कि आप थोड़ी और मेहनत करके फिर तो बिल्कुल। आपको गोल्ड मिल रहा है, तो खुशी होती है। तो इसके लिए फिर यही ट्राई करती हूँ। अभी तो मैं इतना रहता नहीं हमारा, जैसे कि कैंप्स में भी होता है, तो हमारा एक रिक्रिएशन गेम का हमारा एक शेड्यूल रहता है कि हर आप वेनेसडे इवनिंग और सैटरडे इवनिंग को रहता है हमारा, हफ्ते में 2 बार। तो उसमें ऐसा रहता था, अभी मैंने 2-3 महीने से तो गेम खेले ही नहीं थे, क्योंकि नहीं थी वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी करना है, खेल तो मैं बाद में भी खेल लूंगी करके। तो इस गोल तरह फिर सेटिंग। वाह, इतना अच्छा लग रहा है मुझे एक इंटरनेशनल लेवल के गोल्ड मेडलिस्ट से बात करके। गणेश सर, आप एक कोच हैं और आई एम श्योर आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि इट्स नॉट जस्ट टेक्निक एंड स्किल, एक मेंटल टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एथलीट के लिए। तो बॉक्सिंग में मेंटल फिटनेस का क्या रोल है? मेंटल फिटनेस मैडम, इट इज आई थिंक लीड क्वालिटी है कोई भी स्पोर्ट्स में। मेंटल क्वालिटी तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। और कॉन्टेक्ट गेम जीतने हैं, जैसे जी, बॉक्सिंग की बात कर बिल्कुल। रहे हैं, कॉन्टेक्ट गेम है उसमें और ज्यादा, और उसमें मारामारी है, लगता भी है तुमको खाली मारना नहीं है, तुमको पंच रिसीव भी करना है, उससे बचना भी है और बच के फिर मारना भी है। तो ये जो कॉन्टेक्ट होने के अर्थ है तुम्हारा, तुम टेक्निकल कितने भी स्ट्रॉन्ग हो जाओ। बहुत से बुक्स हम देखते हैं, सिखाते हैं, हम ट्रेनिंग में आते हैं, अभी भी है ट्रेनिंग कराती है, तो उसमें मतलब कुछ डॉक्टर ऐसे ट्रेनिंग में ऐसे दिखते हैं कि दे आर डूइंग टेक्निकली और वेरी परफेक्ट, मस्त कर दे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भले रेगुलर नहीं रहते, वो कभी भी रहती है, लेकिन ट्रेनिंग जो बता रहे मस्त करते रहते हैं। हाँ, वेरी गुड, टेक्निकली बहुत अच्छा है। लेकिन वेन दे इन द रिंग, बॉक्सिंग रिंग में जो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में जब आते हैं ना, तो उनका वो टेक्निक उतना नहीं कर पाते वहाँ, जितना वो आज शोरों में करते हैं, हवा में करते हैं। तो क्या वो, इट इज द मेंटल क्वालिटी। आणि तुम्हारा एक साइकोलॉजिकल जो बिल्डअप है सिचुएशन के अगेंस्ट में, तुमको सिचुएशन के फेवर में तुमको खेलना है, और किसी ओपोनेंट के सामने खेलना है, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में खेलना है, और एक लेवल में खेलना है। इसमें वो तुम्हारा मेंटल बिल्डअप ही काम करता है।
तो कोच तुमको ट्रेनर कितना तुमको फिजिकल फिट कर दो, तुमको तुम्हारा टेक्निकल फिट कर दो, लेकिन वो टेक्निक और फिटनेस तभी काम में आएगा जब उसका मेंटल ही और शी मेंटली रेडी। और वो जब फिजिकल जितना भी बिल्डअप तगड़ा है उसका, तो कोई बहुत से बॉक्सर इस क्वालिटी के कारण से अच्छे बॉक्सरों को, अच्छे प्लेयरों को भारी भी पड़ जाते हैं, साइकोलॉजिकल रहते हो। ये मेंटल क्वालिटी जो है वो एक बहुत मास्टर रोल रहता है गेम में। और कॉन्टेक्ट गेम में तो मोस्टली आई थिंक 90% रोल ऑफ द मेंटल एबिलिटी, क्योंकि इसमें फिर तुम्हारा एक तो तुम्हारा डेयरिंग भी है, और दूसरा मैन्युअल खेलने का तुम्हारा, और मार खाने के बाद या फिर लूजिंग, तुम जो हार रहे हो या अपोनेंट बहुत तगड़ा है, तब भी तुम्हारा यूज करने को तुम्हारा टेक्निक तो है, तुमने प्रैक्टिस किया है, उस लेवल पे हो तुम, तुम्हारा यू हैव एवरीथिंग, लेकिन तुमको उस टाइम पे बताना है, उस टेक्निक को सिचुएशन में लाना है प्रैक्टिकली। वो तुम्हारा एबिलिटी, मेंटेलिटी के ऊपर ही आधारित रहता है। तो ये वो वीक हो गया तो आदमी का जितना 90% इसका गेम है, तो ही कैन शो द 20%, 80% दिस लैक ऑफ दिस क्वालिटी, दे डिस्ट्रॉय देयर कैपेसिटी। अल्फिया, मैंने वो वीडियो देखा था तुम्हारा जिसमें तुमको गोल्ड मेडल मिला। व्हेन दे अनाउंस द प्राइज, इतना एकदम काम एंड कंट्रोल्ड, कोई कूदना फादना नहीं, नथिंग, वेरी तो वो कैसे तुम ऐसे रहती हो? एंड आई एम श्योर कि मेंटल तुम्हारा स्किल के लिए कुछ ना कुछ करती होगी, तो व्हाट डू यू डू अबाउट दैट? कैसे इतना तुम्हारा मेंटल स्किल्स इतनी स्ट्रांग है, क्या करती हो उसके लिए? मैम, जैसे कि आप बोल रहे कि जब मुझे फाइनल में जब मैं विन हुई थी, उस टाइम की आप जो वीडियो बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे जो मेरी फाइनल के अपोनेंट थी, तो उसके पहले हमारा एक वर्ल्ड के पहले एज ए एक्सपीरियंस के लिए हमारी BFI जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हमें इनविटेशन टूर के लिए दिया था, एक्सपीरियंस के लिए आप कंपटीशन चेक करके आइए कि आप वर्ल्ड के पहले आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि कोविड की वजह से 1.5 साल कुछ था नहीं बॉक्सर्स वगैरह, सारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो इसमें लिए मैं हम उसके लिए सिलेक्ट हुई थी, मैं फिर उसमें गए थे, मॉन्टेनिग्रो था जो, तो वहां पर जो मुझे फाइनल में जो लड़की थी वही मुझे सेम वर्ल्ड में फाइनल में थी, तो वहां पर मैंने उसे 5-0 वन साइडेड हराया था। तो मुझे उतना प्रेशर नहीं था कि नहीं मैं कैसे खेलूंगी, क्या मैं एकदम शांति से थी, नहीं आराम से बाउट निकालेंगे करके, और गोल्ड तो फिर है, क्योंकि मेरी सेमीफाइनल जैसे कि पोलैंड में गए थे हम खेलने, तो जो आपकी होस्ट कंट्री होती है पोलैंड की, तो एक होम कंट्री हो जाती है, तो आपको एक प्रेशर हो जाता है, क्योंकि अगर आप 3-2 में अगर आप अपनी बाउट देंगे आप 19-20 में, तो वो उनके फेवर में जाती है। तो उस तरह जो मेरी सेमीफाइनल पोलैंड से आई थी, तो उसमें भी मैं फर्स्ट राउंड हार गई, सेकेंड राउंड में मैं मेरा स्कोर था, फिर थर्ड राउंड में फिर मेरा स्कोर था, इसमें 3-2 से जीती थी। तो वो बाउट मेरी वर्ल्ड की टफेस्ट थी जो आज तक मैंने खेली थी निकालने। तो उसके बाद मुझे फिर ये बाउट कुछ लगी भी नहीं थी कि हाँ ये तो निकाल लेंगे करके। तो इस तरह फिर 5-2 से फिर मैं जीती थी, तो फिर मुझे पता ही था कि वो जीतेंगे, तो इतनी मुझे एक्साइटमेंट नहीं थी कि हाँ वो करके, तो इसकी ओके। पर बाउट शुरू होने से पहले थोड़ा कुछ ऐसे नर्वस फील होता है? कैसा फील होता है तुम्हें व्हेन यू आर गोइंग इनटू द रिंग? क्या अल्फिया रिंग में जाने से पहले क्या सोच रही होती है? मैम, थोड़ी तो एंजाइटी सबको ही रहती है कि आप जब खेलेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है कि मैं खेलूंगी नहीं खेलूंगी, कैसी जाएंगी। बस मैं यही रिंग पे जाने से पहले सोचती हूँ कि ठीक है, कोई भी है जाने दो, हमने इतनी मेहनत की है। मैं 6-7 महीने जो था, तो मुझे घर पे छुट्टी ही नहीं दी थी कैंप वालों ने, क्योंकि आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, और कोविड की सिचुएशन देख के महाराष्ट्र में तो और नहीं दे रहे थे। तो उसमें ना मैं घर वालों से मिली थी, ना कुछ पूरा फोकस ही मेरा 6 महीने ट्रेनिंग पे था। तो इतनी मेहनत की थी, तो फिर अब जब आपको परफॉर्म करने की बात आती, तो आप पीछे कैसे हट सकते? तो बस यही सोच के मैं चलती थी कि बस अपना 100% खेल के आऊंगी, जीतेंगे हारेंगे वो बात होती, पहले अपना बेस्ट देके फिर आएंगे। तो फिर उस तरह ये सोच से फिर मैं खेलने जाती हूँ, और फिर मेरा उस हिसाब से फिर गोल्ड भी आया था। तो गणेश सर, हम लोग कंक्लूड करने से पहले आपसे ये पूछेंगे कि अगर बहुत सारे और भी बडिंग बॉक्सर्स हैं, जो देश के यंग बॉक्सर्स जो
प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए कोई 2 या 3 इम्पोर्टेंट टिप्स दे दीजिए आप, जो उनको फॉलो करना चाहिए। टिप्स तो मैडम देखो कि कोचेज जितने भी बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, सबके उनके अपने कोचेज का रिस्ट्रिक्शन रहता ही है। और सभी मोस्टली जो अपन बोलते हैं कि चलो भी वेल डिसिप्लिन रहो और अपना रेगुलर रहो, ये जो बातें हैं ये लगभग सबने करना ही चाहिए। लेकिन डिसिप्लिन का मेरा ऐसा है कि डिसिप्लिन खाली तुम किसी की इज्जत कर दिया तुमने, तुम्हारा कोच है या तुम्हारा कोई सीनियर है उसको नमस्ते सर या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, वो डिसिप्लिन खाली उससे नहीं होता है। डिसिप्लिन तुम्हारा जो उसका पूरा डिटेल ये है कि तुम्हारा ट्रेनिंग शेड्यूल को फॉलो करना, उसके अलावा फिर तुम्हारा डाइट शेड्यूल को जितना तुम काम कर रहे हो उतना तुम्हारा उसका डाइट शेड्यूल टाइम टेबल मेंटेन करना, और तुम्हारा ट्रेनिंग और तुम्हारा खाने का तो तुम्हारा रेस्ट भी होना चाहिए। यदि तुमको हाई लेवल तक जाना है, जो एक लेवल तक ऊपर चले जाते हैं, जैसे अल्फिया चलेगी नेशनल लेवल के ऊपर, फिर उनको तो भी सब सुविधा मिलती रहती है। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल से जो आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए वो जरूरी है कि उन्होंने पूरा मैनेज करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ेगा उनको कि तुम्हारा प्रैक्टिस मिस नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन के बाद डिसिप्लिन ये सब आ जाता है। और तुम्हारा खाने का टाइम टेबल बनना चाहिए, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हो सब चलेगा, लेकिन तुम्हारा टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। इतने बजे वो खाना, इतना ट्रेनिंग के पीछे इतने पहले वो लोग बता दिए कितने पहले ट्रेनिंग करना है, कॉम्पिटिशन के टाइम पे कितनी देर पहले खाना खा लेना है, रात का खाना कितने बजे खाना है, क्या खाना नहीं खाना, वो एक तुम्हारा डाइट रहता है तुम्हारी स्थिति के हिसाब से। देखिए ये जो तुम्हारा एजुकेशन भी है, बाकी तुम्हारे और भी फ्रेंड्स है, सर्कल है, तुम्हारी फैमिली है, टीवी है आजकल इंटरटेनमेंट के लिए, मोबाइल से, तो ये सब जो चीजें हैं इनको तुम मैनेज नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा सप्ताह तो सबके रहते हैं, लेकिन हाई लेवल जाने की आदमी कोई ख्वाब देखता है, उन्होंने ये मेन डिसिप्लिन ही बोलता है। ये सब जितने डिसिप्लिन के जो पार्ट है उसको तुमने पूरा मैनेज करना पड़ता है, बाकी चीजें सब ऑटोमेटिक होने लगती है जी। और अल्फिया अभी इसके आगे कहाँ जाने का इरादा है? मैम अभी तो मुझे एक और साल यूथ का है अभी मेरे पास में, तो उसमें अभी हमारा अभी यूथ एशियन चैंपियनशिप आई है, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो और फिर आगे जाके जब मैं सीनियर हो जाऊँ तो फ्यूचर का प्लान ये है कि मैं अपने महाराष्ट्र को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करूँ, इंडिया को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करूँ। तो यही मेरा एक मतलब टारगेट है मेन। और उसके पहले जो भी मेरी एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप आएंगे तो उसके साथ साथ मैं एक मतलब धीरे धीरे करके ओलंपिक के उसमें जाना चाहूंगी। और अपनी तुम पढ़ाई और बॉक्सिंग को एक साथ मैनेज करती हो, तो उसका क्या राज है? मैम जैसे कि हमारा मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन रहता है, आप जब एक लेवल पे चले आते हैं, जैसे आप मैं इंटरनेशनल खेलती हूँ तो आपको कैंप में ही रहना पड़ता है आधा, मतलब आप पूरे ईयर में आप बड़े मुश्किल से 1-2 महीना आप घर पे रहते हैं, तो बाकी आपके कैंप ही कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो उसमें फिर मेरी जो पढ़ाई रहती है स्टडीज वगैरह, तो वो मैं नागपुर से ही करती हूँ, मेरे स्कूल कॉलेज नागपुर में ही है। तो ऐसा हुआ करता था कि पेपर्स के लिए हमें छुट्टी दी जाती थी वहां से कि आप टाइम टेबल दे दीजिए अपना पेपर के और इस तारीख जाके आप वापस पेपर दे के आ जाइए। तो उस टाइम पे ऐसा हो जाता था कि 3-4 दिन में आपको पूरा साल भर का पढ़ना पड़ता था। तो इस तरह ही मेरे 10th के पिछले साल में 10th सीबीएसई में थी, तो मेरे बोर्ड के पेपर थे उस टाइम पे। तो मुझे मेरा 20 फेब को फर्स्ट पेपर था और मुझे एक फेब को छुट्टी मिली थी। तो उसमें 10-15 दिन मतलब ऐसे हो जाते कि आप दिन रात सुबह फिर रात भर आप पढ़ो, फिर पेपर दो, फिर रात भर 2-3 दिन पूरा पढ़ने में निकालो और फिर पेपर दो। तो इस तरह से फिर मैनेज करके फिर मैं ऐसी स्टडी और इसे मैनेज करती हूँ स्पोर्ट्स को। और क्योंकि आप जैसे कैंप में रहते तो वहां पर आपकी स्टडी हो ही नहीं पाती, क्योंकि आपको 2-3 टाइम तो आपकी ट्रेनिंग करा देते हैं वो लोग। फिर आप जैसी तो पूरा आपको मतलब निचोड़ ही देते हैं कि आप मतलब आपकी हालत आप आगे जाके पढ़े। तो इस तरह ऐसा होता था, ट्रेनिंग करते थे और आके खाए, ब्रेकफास्ट किया, फिर सो गए, फिर ट्रेनिंग में फिर लंच किया, फिर सो गए, और फिर इवनिंग ट्रेनिंग में फिर डिनर करके सो गए। इस तरह से चलता रहता था। तो फिर जब पढ़ाई की बात आती थी तो वही आपको 5-10 दिन दिए जाते थे पढ़ने पेपर के पहले, उसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ते थे। पर तुम फिर भी मैनेज करती हो दोनों चीजों को बैलेंस करके,
तो हम लोग चाहते हैं अल्फिया कि तुम इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करो एंड बेस्ट ऑफ जर्नी फ्रॉम हियर एंड थैंक यू गणेश सर। आपने एक्चुअली एक बहुत मजेदार चीज ये है कि मैंने आज ये नया शुरू किया है, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। गणेश सर आ गए हमारे इस एपिसोड में, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। श्री गणेश आपसे ही हुआ है सर। और अल्फिया आपको बहुत बहुत हम लोग सबकी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड कीप मेकिंग इंडिया प्राउड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.